Divyanshu. Arnav, here, introduce yourself. Hello everyone, so my name is Arnav and I'm the founder of AskUp and Divyanshu is the co-founder. My idea behind starting AskUp is basically कि as you guys can see, तुम लोगों को ना मतलब you don't find that guidance which you are looking for, right? You don't get the information which is required in college. For example, you aren't able to meet the right seniors. For me personally, I joined DevSoc and I was there for like 2 years. And I tried to get guidance from seniors who weren't even from my course, and that backfired because I then invested a lot in like this DevSoc, and I did not think outside the box that what I should do for my own career or for myself. So I was able to develop my hard skills, soft skills, but it led to me not knowing enough about college, and that's what I want to give you the opportunities which I did not have back in the day. So, what would you like to tell us about the session that we had with Anya? How it is, how it is beneficial for the students who will watch it? Okay, so I think it's quite beneficial for the students because first of all, they don't know the importance of internships. So I thought I should do an internship in my first year, but I was like, अभी इतना नहीं आता, अभी क्या करेंगे, क्या फायदा? Then in my second year, I took it very slowly. Let's find intern and do it. But later now I know that I wasted a lot of time in third year में काफी ज़्यादा career के related and college के आगे का सोचना पड़ता है, so you don't have enough time for internships. So I want to tell you कि how important with this session, कि how important are internships actually and why are they beneficial for you? Two reasons. First of all, you get work experience, right? You know actually how the corporate world looks like and how you are going to function. How you basically if you want to go into corporate or not. Secondly, it's because you will get a stipend. But that's the reason for work experience and for experience of corporate world. That's So here at AskUp, we have had session with Anya Gupta, and she has been a very great student, and she has already done multiple internships. She is currently doing PIC. So have a great session. The session is ahead, and we have also provided the notes. You can go check it out and have internships. Shortly, we will also provide the list of internships that we have made, and you can check it out. So we are providing the data. It's now your work to take that data and utilize it. Thank you. Business Economics Honors from Shivaji College. And to introduce myself, I would say that currently I'm just a PIS intern. Previously, I have been an intern as a content writing in an HR or even in operations. And for academics, I'll say yes, I'm good at it. Apart from that, if talk about my curriculars, I'm serving as editorial head at the National Service Team Shivaji College. Previously, I've even served as operations head for my department and contested for president too. Apart from that, that sums up my introduction for now. Following which, I'm very glad that they asked me for this meeting and to introduce and to just introduce you all to the atmosphere of actual college life and how the things work in actual college life. Yeah, that's all from my side currently. So where should I begin? Beginning with the बिल्कुल academics से या फिर सीधा internships पर आ जाऊँ? बताओ सब लोग, everyone. Starting क्या चाहते हो कि क्या कहाँ से शुरू करूँ? Guys, everybody is meant to participate in it. स्टार्ट करते हैं थोड़ा academics से स्टार्ट करते हैं मुझे आवाज नहीं आई जिसने बोला. Yeah, I was just saying that this session is not going to be a monologue. Everybody has to participate in it. Yes, Natasha, go ahead. अभी तो साशा ने कुछ बोला, मैंने सुना नहीं क्या बोला उसने. मैं ये कही थी कि थोड़ा academics से स्टार्ट करते हैं कि academics मतलब CGPA वगैरह कितनी important है कॉलेज में. ओके, सो ये मेरा फेवरेट टॉपिक है एक्चुअली. मैं बताती हूँ क्यों इम्पोर्टेंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल, बच्चे ना कॉलेज में आते सोचते हैं कि फर्स्ट ईयर तो निकल ही जाएगा, डिजिट नंबर दे देते हैं. कहीं हद तक ये सच भी है, कुछ कोर्सेज के लिए भी सच है कि डिजिट नंबर दे देते हैं, बट एक्चुअल में तुम्हारे पेपर्स कॉलेज में नहीं चेक होते हैं. 4 पेपर्स तुम्हारे चेक होते हैं बाहर किसी और कॉलेज में. हमारे कॉलेज में गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स चेक करता है, अब हमारे प्रोफेसर करता है. तो मेंटेन करना जरूरी है कि कॉलेज फर्स्ट ईयर में बच्चे बहुत ज्यादा रिलेट हो जाते हैं कि हमने सीयूटी क्रैक कर लिया, हम इस कॉलेज में आ गए, हमारा डिजायर्ड कोर्स मिल गया, हम जनरल कैटेगरी के, हमारी कट ऑफ गई थी, ये वो है. तो उसमें रहता है डिवीजन में कि हमको कॉलेज में पढ़ ही लेंगे.
बट कॉलेज इज नॉट अ स्कूल। यहाँ पे पढ़ाई इस क्लासरूम की तरह नहीं होती, तुम लेक्चर अटेंड करोगे, नोट्स लोगे, पेपर में वही होगा, लिखाओगे, नहीं होता ऐसा। पहली बात तो टीचर्स पढ़ाते ही नहीं है ढंग से। जो पढ़ाते हैं बच्चे भी क्लास में जा रहे बंक मार लेते हैं, तो मेरी मोटिव करके कोई मत जा। और सोसाइटी में आते आते बच्चे सोसाइटी काम में क्लासेस मिस करते हैं, अटेंडेंस अपनी बिल्कुल गिरा लेते हैं। और आप सभी को ये पता होगा कि अटेंडेंस के हर सब्जेक्ट में 12 से 13 नंबर हैं आउट ऑफ 160, एंड दैट attributes to your actual CGPA, what you score in the mention exam. सो अगर मैं बात करूँ अकेडमिक्स कैसे मैनेज करना है, तो रिसोर्सेज स्टार्टिंग में इकट्ठे कर लिया करो। पढ़ाई स्टार्ट मत करो, दैट्स अप टू यू, बट रिसोर्सेज इकट्ठे करो। जैसे बुक्स हो गई, फिजिकल कॉपीज में देखिए, ई कॉपीज या फिर PDF मिल जाती हैं ऑनलाइन भी। और इसके अलावा सिलेबस को अपने गोल्स को पढ़ लो कि हाँ ये सिलेबस इस सेमेस्टर का है, ये इसमें रीडिंग्स हमें प्रेफर करिए। रीडिंग्स खरीदना है और अब तो यू पहले टीचर से बात करो कि हाँ कि टीचर बोले कि खरीद लो तो खरीद लो। बट कई बार हमारी कॉलेज रीडिंग इतनी वर्थ इट नहीं होती, दे आर जस्ट वेस्ट ऑफ मनी। उसके अलावा यूट्यूब से बच्चे बहुत पढ़ते हैं, मैं खुद भी पढ़ती हूँ, एंड दैट्स एक्चुअली अ गुड सोर्स फॉर स्टडीज ड्यूरिंग कॉलेज एग्जाम्स। तो अपने नोट्स बनाओ, सेल्फ स्टडी करो, और ऐसे नहीं मत करो कि केवल पढ़ ही रहे हो, करिकुलर को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हो। कि कॉलेज इज नॉट जस्ट फॉर स्टडिंग एंड क्रैमिंग थिंग्स एंड गेटिंग गुड मार्क्स, बट एक डिसेंट CGPA शुड बी बिटवीन 7.5 टू 8.5, और इससे अभी मेंटेन करो कि तुम 8.5 को भी क्रॉस करो। स्टैंड आउट अमंग द क्राउड, नॉट जस्ट बीइंग अ पार्ट ऑफ अ हर्ट, बट मतलब मैं अपनी बात करूँ तो मेरी हर सेमेस्टर से बड़ी ही है CGPA। फर्स्ट सेमेस्टर में 8.27 थी, फिर 8.32 हुई, 8 पॉइंट अभी 5 मैंने थर्ड सेमेस्टर में करी है। तो अब मेरा है कि टारगेट हम उसको 9 तक खींच दूँ। और कैसे खींचनी है, इंटरनल एग्जाम इंटरनल से होते हैं हमारे, इंटरनल 70 मार्क्स का होता है, एंड दैट मैटर्स। बच्चे क्या करते हैं, कुछ भी दे देते हैं, कॉपी पेस्ट करके ना, असाइनमेंट हो गया दे दिया, 15 नंबर का टॉपिक को 2 बार कुछ भी दे देते थे। बट टीचर भी पागल नहीं है, 18-19 साल से प्रोफेसर है, उनको पता है कि बच्चे को कितने नंबर देने हैं। और फेस वैल्यू ऐसा नहीं कि बच्चे बोलते कि फेस वैल्यू मैटर करती है, हाँ करती है कई जगह। बट अगर तुम क्लास में बिल्कुल प्रेजेंट ही नहीं हो, किसी को तुम्हारी शक्ल भी नहीं पता, तुम्हें नंबर भी कैसे देगी फेस वैल्यू पे भी। तो असाइनमेंट्स को सीरियसली लो, बाकी डेडलाइंस को मैच करो कि टीचर ने क्लासरूम पे डाल दिया कि इतने बजे तक असाइनमेंट आ जाने चाहिए तो दे दो। अपने फ्रेंड्स को केवल ब्लाइंडली फॉलो मत करो, बच्चे ना बहुत ज्यादा किस्में आ जाते हैं हाइक में कि मेरे फ्रेंड्स भी नहीं कर रहे, मैं भी नहीं करूंगा। अपनी पर्सनल ओपिनियन रखो चीजों को लेके कि अगर बच्चे, मेरे तो फर्स्ट एक एक्सपीरियंस है कि मेरा पहले काफी बड़ा ग्रुप था फ्रेंड सर्कल का, वो पूरा सिकुड़ के 4 लोगों का हो चुका है। क्योंकि क्लैश ऑफ आइडियाज उनके उनकी कुछ और थे, उनको कहीं और जाना था, मुझे कहीं और जाना था, उनके दोस्त मुझसे अलाइन नहीं होते थे। तो फाइंड राइट पीपल फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट फाइंड एनीवन कि हाँ तुम मेरा दोस्त है, तुम मेरे साथ, हर कोई तुम्हारा दोस्त नहीं होता कॉलेज में। देयर आर एक्विंटेंस और क्लासमेट्स। दोस्त तुम्हारा हार्डली 1 या 2 बनेंगे, मुश्किल से 4 बनेंगे, मेरे 3 बने। और वैसे बनाओ जो जिनके दोस्त तुमसे अलाइन हो, तुम्हें सेकंड ईयर तक आते आते पता लगेगा, ये नहीं कि फर्स्ट ईयर में फर्स्ट डे हाँ तुम्हारा दोस्त तुम्हारा दोस्त। बाय द टाइम यू विल बी सेकंड ईयर तब तुम्हारे दोस्त बनेंगे कि हाँ दोस्त हु वुड बी एबल टू ट्रस्ट यू। और एकेडमिक्स उनके साथ तुम्हारा मैचअप होगा। जैसे मेरे जो फ्रेंड्स हैं, हमें 36 हमें कवर करना है, तो हेल्दी कंपटीशन रहता है कि सबको करना है। तो हम चारों कॉम्पिटेटिव CGPA आती है, मेरी 8.5 है, 8.64 है, 8.44 है, हम चारों के बराबर आती है। तो उससे ना तुम्हारे कॉम्पिटिशन और बिल्डअप होगा कि हाँ मुझे अब इनको पार करना है, तो इनके बराबर मेंटेन करना है। एक बार टॉक्सिसिटी से तुम निकल जाते हो ना, तो हम अपना अगला अलग लेवल ग्लो अप आता है। तो एकेडमिक्स मैटर करते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ कोर्स। और जब तुम इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हो तो आज की तुम्हारा भी क्या चल रहा है, और अपनी CV में मेंशन करते हो उसमें कि ये मेरा एकेडमिक्स है, 10th के हैं, 11th के हैं, 12th के हैं। तो अगर तुमने उसके मार्क्स मेंशन नहीं करे अपने फर्स्ट से, तो पूछे कितने कम, क्योंकि तुमने मेंशन नहीं करे, तो कई बार वो एक ऐसी मिल जाता है कि हाँ मेरे इतने थे, मैंने इतना करा। और स्टैंड आउट भी करोगे कि देखो यार बच्चे, और नोट्स डोंट शेयर विद एनीवन। ये अपने खुद से एक्सपीरियंस था कि नोट्स खुद जो बनाते हो पर्सनल हैंड रिटन या फिर iPad पे, वो अपने दोस्तों से बिल्कुल क्लोज वालों से जब तक शेयर मत करना तो तुम्हें ट्रस्ट हो जाए उनपे कि हाँ दे आर माई पीपल। क्योंकि मेरे नोट्स जो थे, पूरी क्लास में सर्कुलेट हो गए थे कि एक बच्चे ने तो मैं सबमिट ही कर दी थी असाइनमेंट के रूप में मेरे नोट्स, कि आने के नोट्स को पता भी नहीं था कि आने के नोट्स नहीं है, उसे सबमिट कर दिए सीधा असाइनमेंट में, टीचर ने पकड़ लिया उसको। तो ऐसे मैं फर्स्ट ईयर में बहुत ही गंदा आ गया था, फर्स्ट ईयर में मुझे लोगों ने बहुत यूज करा। सेकंड ईयर तक आते आते मैं समझ गई थी एक्चुअल में ऐसे होते हैं लोग। तो अपने नोट्स अपने तक ही रखना, और वो ये मत आना कि मैंने इतने सिलेबस कर लिया, इतना सिलेबस कर लिया। यार नजर इज रियल यार, लग जाती है। मतलब हुआ था कि फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर तक आते आते ना मेरे को मंदिर आ जाते हैं नंबर तो आराम से 6 मेरे हाईएस्ट आ रहे क्लास में, एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत है। बट कंसिस्टेंट रहो, चाहे तुम कॉलेज एग्जाम्स के लिए रहो या फिर अपने एंट्रेंस टेस्ट है, कैट हो गया, कुछ बच्चे CUT PG भी देते हैं, या फिर बाहर जाने के लिए GMAT देते हैं, GRE देते हैं, IELTS देते हैं। तो उसके लिए भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। अगर तुम्हें पता है कॉम्पिटिशन टफ है, तुम्हारी कैटेगरी है जनरल,
तो आई वुड प्रेफर कि तुम सेकंड ईयर के लास्ट में प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि यूजुअली थर्ड ईयर के एंड तक आते हैं तो इंटरेस्ट चालू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कैट होता है नवंबर, 20 नवंबर में होता है। तो आई वुड सजेस्ट उसके लिए तुम प्रिपरेशन 6 मंथ बैक स्टार्ट कर दो एटलीस्ट। अगर तुम्हारा और प्रोफाइल प्रोफाइल जो बोलते हैं ना कि 10th 11th ग्रेजुएशन, सॉरी 10th 12th में ग्रेजुएशन, वो प्रोफाइल होता है। अगर तुम्हारे 10th में 90 प्लस है, 12th में 90 प्लस है, और तुम्हारी कॉलेज में भी तुम एटलीस्ट डिस्टिंक्शन तो पार कर रहे हो, 7.5 पार कर रहे हो, तो एक, हाँ, कि स्कूल में से भी तुम्हारा स्टैंडर्ड करते हो कि जो कैट में भी 90% अगर तुम ला रहे हो तो आईएएस तो तुम्हें प्रोफाइल दिखेगा कि हाँ, एक बच्चे ने कॉलेज में भी कंसिस्टेंटली इतने स्कोर करे हैं और अभी भी कैट में भी इतने आए हैं। तो अगर तुम्हें ड्यू रिजल्ट पता ही कैसे आता है, फर्स्ट सेमेस्टर इतने, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर इसमें, तो पूरा रिजल्ट दिखता ही होगा। तो अगर तुम्हें ना खुद को सेटिस्फैक्शन दिखेगी 8.1, 8.2, 8.3, तो खुद को भी सेटिस्फैक्शन होती है कि हाँ, मैं कंसिस्टेंट हूँ। अकेडमिक बैलेंस करना बहुत जरूरी है। सोसाइटी को ब्लाइंडली फॉलो मत करना कि सोसाइटी वालों ने बिठा के रखा हुआ तुम्हें 8 बजे तक शाम के, और फर्स्ट डे से बहुत कम ले लेते हैं हेड वाले तुम्हारे, बहुत कम लेते हैं। मैं खुद भी हेड होने से तो मुझे पता है, मुझे काम लेना आता है, निकलवाना पड़ता है, क्योंकि मैं क्यों काम करूँ जब मैं हेड बनी हूँ तो। और उसके अलावा सोसाइटी वो ज्वाइन करो जो तुम्हें लगता है कि हाँ हाँ हिमांशु बोलो। हम्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम अपने आइडेंटिफाई करो कि तुम्हें कहाँ पर करनी है। बच्चे कई बार इन्हें पता नहीं होता कि उनका डोमेन एक्चुअल में इंटरेस्ट डोमेन है क्या, जैसे मुझे भी नहीं पता था। अगर तुम्हें एचआर में इंटरेस्ट है तो उसके पहले कुछ कोर्सेज करो, अगर तुम इंटर्नशिप पहले एचआर से स्टार्ट करो, कि मिल जाते हैं बड़ी इंटर्नशिप एचआर की इन एन एनजीओ और इन स्टार्टअप। इंटर्नशिप वगैरह को तुम्हारे बेसिक रेजल्यूशन उसमें ले लेंगे। वो 1-2 मंथ्स की इंटर्नशिप होती है, एंड फिर उससे स्टार्ट करो। अगर तुम्हें वो नहीं पसंद आई कि एचआर का काम तो मेरे मतलब का है नहीं है, इंटरव्यू देना है, ओके मैं नहीं कर पाऊंगा, छोड़ दो, नेक्स्ट चीज ट्राई करो। पहले तुम खुद डिसाइड करो तुम्हें कहाँ पर करनी है, वीडियो एडिटिंग में करनी है, ग्राफिक डिजाइनिंग में करनी है, सोशल मीडिया मार्केटिंग में करनी है, मार्केटिंग में करनी है, कैंपेनिंग में करनी है, कंटेंट राइटिंग में करनी है, किस जॉनर में करनी है, पहले वो डिसाइड करो। ताकि उसके बाद क्या होता है, जब तुम डिसाइड कर लेते हो ना, तो तुम्हें पता है कि अच्छा, फिर तुम उसी फील्ड में उन्हीं के फाउंडर को जो तुम्हें लगता है जिन पर तुम्हारे प्रेफरेंस भी आने लग जाता है फिर, कि यहाँ पे एचआर इंटर्नशिप है, यहाँ पर ये ग्राफिक डिजाइनर की इंटर्नशिप है, तो हमारा पूरा जो फीड है लिंक्डइन का भी या फिर इंटर्नशाला का भी, वो उससे अलाइन होने लग जाता है, तो तुम्हें और अपडेट अपने आप ही मिलने लग जाती है। और प्लेसमेंट सेल में भी आती है अपॉर्चुनिटीज काफी हमारे कोर्स की, जो भी तुम्हें कोर्स पसंद, जो भी तुम्हें पसंद है डोमेन। जैसे प्लेसमेंट फेयर हुआ तो हर कंपनी ऑलमोस्ट 5-6 प्रोफाइल ऑफर कर रही थी। मेजोरिटी उसमें से हो रही थी एचआर, कंटेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट क्रिएशन। तो ये कुछ बेसिक डोमेन है, और ट्राई टू मास्टर एटलीस्ट 2-3 डोमेन। एक एक डोमेन को स्टिक मत होना कि अब तो मैं एचआर में ही करूंगा, केवल एचआर में ही करूंगा। एचआर में 2-3 कर लो, फिर स्विच करो, अब मुझे मार्केटिंग में जाना है, स्विच करो मुझे सेल्स में जाना है, स्विच करो। हर किसी को एक्सप्लोर कर लो, फिर एक फीडबैक तुम्हारा बेस होना चाहिए कि हाँ, मुझे इसमें तो आगे कंटिन्यू करना है। एक्सपीरियंस सबका ले लो। दिव्यांशु, फर्स्ट ऑफ ऑल जब तू किसी स्किल को मास्टर कर रहा हो, मास्टर तेरी जब होगी जब तूने ऑलरेडी इंटर्नशिप कर चुका है, तूने वीडियोस देख ली एडिटिंग, मतलब सॉरी, तूने वीडियोस देख ली यूट्यूब पे, तूने यूडेमी से कोर्स कर लिया। उसके अलावा कौन सा ऐप है वो इंटर्नशिप वाले भी कोर्सेज ऑफर करते हैं। बट तुम्हारी स्किल मास्टर जब होती है जब तुम एक्चुअल में उस पर काम करते हो, एज एन इंटर्न काम करते हो। ऑफलाइन इंटर्नशिप भी मिल जाती हैं, और तुम्हारे रेफरल्स भी होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारी कोई फ्रेंड ऑलरेडी उसमें कर चुकी है, और कर चुकी है, तो उससे तुम रेफर ले लो कि मैंने इस कंपनी में कर चुकी, तू भी करके देख ले। और लिंक्डइन तो मिल जाता है, लिंक्डइन में तो फुल ढंग से करोगे ना, सर्च फॉर कंपनीज, ऐसे सर्च करो कि एचआर ओपनिंग फॉर इंटर्न्स, एचआर ओपनिंग, ऐसे मतलब तुम ऐसे चीजें सर्च करोगे, तुम्हारे पास अपने आप आ जाएंगी। और प्रोजेक्ट स्टार्ट करो। अगर तुम वीडियो एडिटिंग वगैरह में हो तो गूगल वगैरह बहुत प्रोजेक्ट ऑफर करते हैं, गूगल हो गया या फिर कौन सी कंपनी, जेपी मॉर्गन हो गया, मॉर्गन स्टैनली हो गया, और इसके अलावा गोल्डमैन सैक्स हो गया, उनकी वेबसाइट पे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, डाटा साइंस के, डाटा एनालिसिस के। अगर तुम्हारा रेज्यूमे बिल्कुल खाली है तो उनको कम्पीट करो प्रोजेक्ट्स को, उनके सर्टिफिकेशन डाल दो।
ताकि तुम जब किसी कंपनी को अप्रोच करो तो भी वो है कि बिल्कुल एक्सपीरियंस बंदा है, उसको उसको कुछ पता ही नहीं है। तुम जो प्रोजेक्ट एक्चुअल में कर चुके हो तो एक्चुअल हैंडलिंग प्रोजेक्ट है जो एक्चुअल में हुए हुए होते हैं ग्राउंड लेवल पे, उनको ट्राई करके देख लो। बिल्कुल जीरो स्टार्ट करना इसी का मतलब होता है कि तुम यू नीड टू ब्राउज बोथ ऑन लिंक्डइन, इंटर्नशाला एंड गूगल। यूज देम राइट, जस्ट नॉट डोंट फॉर देम कि बस देख रहा हूँ लोगों के सक्सेसफुल देख रहा हूँ, यहाँ पे इंटर्नशिप वहाँ पे इंटर्नशिप। सर्च फॉर एट इंटर्नशिप्स एंड इवन गो फॉर गवर्नमेंट इंटर्नशिप्स लाइक नीति आयोग, लाइक एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स की अभी निकली हुई है, नेशनल ह्यूमन राइट्स की भी निकली हुई है। दे आर मोस्टली अनपेड एंड दे हायर इन मास, दे बहुत मास लेवल पे हायर करते हैं और अप्रोक्सीमेटली 2-2.5 हजार इंटर्न्स को हायर करते हैं ऑल ओवर इंडिया में से। तो वो बहुत वेट ऐड करेगी तुम्हारे सीवी में कि मैंने इस मिनिस्ट्री से इंटर्नशिप कर रखी है फॉर 6 मंथ्स, 1 ईयर, 3 मंथ्स। तो एंड दैट इज नॉट वो पर्टिकुलर प्रोफाइल में नहीं होते कि एचआर है, कंटेंट राइटिंग है या फिर कोई और जॉनर है। इट्स एक्चुअली बेसिक इंटर्नशिप, वो तुम्हें बस दिखाते हैं कि एक्चुअली गवर्नमेंट का काम ऐसे होता है। और अभी वीसीआईएस भी आएगी, वीसीआईएस में अप्लाई करो, वाट्सएप से इंटर्नशिप स्कीम जो आएगी डीओ इसमें अप्लाई करके देख लो, पीआईएस अगले साल दोबारा आएगी उसमें अप्लाई करके देख लो। अपने आप तुम खुद ही दरवाजे खोलते चले जाओगे जब तुम ट्राई करना चालू करोगे। आदित्य ने हैंड रेस करा हुआ है, ऐसे कहते हो। Yes, Didi. So I had this doubt, and like from like starting of college, I have noticed हम्म people like blindly chasing internships. Like उनको internships करनी है, they don't care about domain. They just want to do internship and like हम्म build their LinkedIn. But like हम्म I have noticed कि लोगों को clear नहीं है कि उन्हें future में क्या करना है. Like some people in हम्म every courses, like some people in my courses want to give like CUET PG, or like some हम्म want to give GATE, like किसी को MBA या CAT करना है. Like my question was, does all these internships really matter? If आपको like anyways, like if you want to do masters in economics, like doing an internship at like any place will matter in like giving exams like these or like any other fields. जैसे बच्चे भी कैट एग्जाम देंगे एमबीए के लिए, एमबीए वाले जो होते हैं तुम्हारा प्रोफाइल देखते हैं, कुछ होते हैं कि बक्स भी देखते हैं। तो अगर तुम्हारा 0 to 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो तुम्हें एक अलग कैटेगरी में चले जाते हैं कि हाँ ये बच्चा फ्रेशर है। और अगर तुम्हारा 2+ एक्सपीरियंस, 2+ ईयर्स का एक्चुअल में एक्सपीरियंस है जॉब वाला, तुम एक्सपीरियंस बंदों में आते हो। तो प्रोफाइल मैटर्स टू एमबीए कॉलेजेस एंड इवन टू सम ऑफ द, मतलब एमए कॉलेज को मैटर कर जाता है अगर वो प्राइवेट अगर है। तो उसके अलावा if I talk about internship does really matter or not, they actually do matter. They help you मतलब develop, they help you develop कि कुछ बच्चे बहुत fearsome होते हैं कि how to deal with public, how to deal with people। अगर तुम किसी उसके लिए मत करो अपना सीवी बिल्ड करना है, बस ये करो कि यार मुझे अपना कुछ एक्सपोज करना है चीजों को। कुछ बच्चे बिल्कुल कॉलेज पढ़ने के बाद भी ना दे आर नॉट एबल टू डील विद नॉर्मल दुकान वाला भैया। वो बच्चे ज्यादा वो हो जाता है कि उन्हें बात करने में वो लगता है कैसे बात करूँ मैं। पब्लिक स्पीकिंग इज अ रियल फियर अमंग इंडियंस, वो नहीं कर पाते बात। और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी बहुत ज्यादा डल है इंडियंस में। हम बोलते हैं कि इंग्लिश बहुत अच्छी बोल लेते हैं इंडियंस, बट एक्चुअल में नहीं बोल पाते। तो इंटर्नशिप तुम अपने आप को एनहांस करने के लिए करो कि हाँ कि यार मुझे अपने आप पे अपना डर खोलना है। और रिजेक्शन का डर होता है कुछ लोगों को, मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा इंटरव्यू में, कुछ उल्टा सीधा बोल दूंगा। बोल दो, तुम कितनी बार लोगों को इंसान से रिजेक्ट हो भी गए तो। और अगर नहीं हो तो अच्छी बात है, तुमने कोई अच्छा ही करा है। और कुछ बच्चे तुम्हारे में कह रहे हैं सीयूटी पीजी कर रहे हैं, तो उनका मेन गोल शायद देखो बच्चे चेस कर रहे हैं इंटर्नशिप। वो भी गलत है, तुम बिल्कुल ऐसे पागल हो कि मुझे इंटर्नशिप इंटर्नशिप करनी है। कुछ बच्चे बिल्कुल ऐसे ही एक्सपर्ट भी हो जाते हैं इस इंटर्नशिप की वजह से कि 6 6 महीने इंटर्नशिप कर रहे हैं, 6 आवर्स को ले रहे हैं पर डे, बट दे आर paying you very mere amount, for example 2-3 thousand per month, and they're asking you to work for 6 hours a day, and that's actual exploitation of anyone. So don't chase internship blindly कि कहीं भी कर लूंगा कुछ भी कर लूंगा। First define yourself, first define your goal, whether you want to do an MBA, whether you want to do an MA, or you want to do any CFA, CA, CS। कुछ बच्चे बाहर भी जाते हैं, उस गोल से अलाइन करें भी कोई इंटर्नशिप लो, जैसे नहीं कुछ भी रैंडम कहीं भी घुस गए। बट फर्स्ट डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू इन फ्यूचर आफ्टर ग्रेजुएशन। अगर उसके बाद तुम्हें नहीं लग रहा है कि मुझसे नहीं होगा कुछ, तब फिर चेंज करना चालू करो कि उसको डिसाइड जब भी कर पाओगे कि अच्छा हाँ ये वाला मुझे हुआ नहीं, अच्छा इंटरव्यू बहुत गंदी थी, मैंने बहुत गंदा उसमें कर दिया, अब मैं इसे यहाँ पे ट्राई करके देख लेता हूँ। तो कीप एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ। और अभी बच्चे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो तो गलतियां तो होंगी, सबसे होंगी। And like does this internships directly affect in PG? If a child gets like selected in Delhi School of Economics, like will the internship which he did at graduation level, will that affect his placement from that college or not? यूजुअली इकोनॉमिक्स ऑनर्स जो बच्चे करते हैं वो एमए इकोनॉमिक्स करते हैं, तो जब आप एडमिशन लेते हो वहाँ पे तो आपका सीयूटी पीजी तक पर मैटर करता है केवल। तो तुम्हारा ग्रेजुएशन का स्कोर, तुम्हारे कितने इंटर्नशिप तुमने करी वो मैटर नहीं करता, वो एमबीए कैट और एमबीए इंटरव्यू में मैटर करता है।
बट प्लेसमेंट यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, पीएचडी भी करते हैं फिर आफ्टर मास्टर्स, फिर प्रोफेसर बनना है, फिर बाहर जाना है इंडिया से। तो इको जब तुम मास्टर्स में निकलते हो तुम एक्चुअली और अच्छी इंटर्नशिप करते हो, तुम एक्चुअल में बैंक में इंटर्नशिप करते हो। क्या बोलते हैं, कौन सा बैंक है, एसबीआई हो गया, आरबीआई हो गया। जब तुम एक्चुअल में कौन के साथ बैठ के इंटर्नशिप, वो तुम्हारे कोर्स से अलाइन करती हैं। ग्राबिंग वाली इंटर्नशिप दे डोंट मैटर इन प्लेसमेंट, और प्लेसमेंट इको ऑनर्स वाले तो यूजुअली पीएचडी भी करते ही हैं। After masters, they go for PhD, or if they go for the job, they actually go for either a school teaching or government teaching. All right, thank you. Anyone else? You guys can ask questions. दी मेरे को एक और बात पूछनी थी, जैसे आपने बोला कि वीसीआईएस की इंटर्नशिप करो, तो वीसीआईएस की इंटर्नशिप अब 6 मंथ्स की होगी, तो उसको कॉलेज के साथ कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि 6 मंथ्स के अंदर हमारे एग्जाम्स भी आ जाएंगे और इंटरनल्स वगैरह भी होते हैं। और बीसीआई 2 बार आती है साल में। एक होती है समर इंटर्नशिप जो तुम्हारी वेकेशन में तुम्हारी कंप्लीट होती है, जैसे पीआईएस हो रही है अभी हमारी। और एक आती है पार्ट टाइम वर्क वाली, दैट एक्चुअली गोज फॉर 8 hours पर वीक। दैट डजंट हैम्पर योर स्टडीज एट ऑल। तुम 8 घंटे आराम से निकाल सकते हो हफ्ते में, अगर तुम एक दिन छुट्टी लेते हो। कॉलेज के बच्चे यूजली लेते हैं। तुम्हारे 6 दिन कॉलेज होता है, सैटरडे को मत जाओ कॉलेज, सैटरडे को वैसे भी सेक वगैरह की होती है, तो छोड़ दो। और सैटरडे को आ जाते तो अपना बिजनेस भी चले जाओ, ऑफिस भी चले जाओ। वो उनको भी पता है कि बच्चे जो उनकी एलिजिबिलिटी है, ये ग्रेजुएशन के बच्चे करेंगे, फिर मास्टर्स के बच्चे करेंगे, डीयू के बच्चे करेंगे। तो उन्होंने एक टर्म्स ऐसी रखी हुई है कि 8 घंटे पर हफ्ता, एंड दैट ऑल्सो जब भी 200 घंटे उनके जब 6 महीने में पूरे होते हैं, वरना हो जाएंगे 1 महीने में पूरे आराम से 200 घंटे, अगर डेली बच्चे 6 घंटे 8 घंटे बैठेंगे तो एक्चुअली 8 hours पर वीक एंड यू कैन मैनेज। एंड वीसीआई से मैंने खुद भी अप्लाई करा था। मैंने अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो, अगर मैंने भी करा था जब समर इंटर्नशिप के लिए, तो वहां पर अप्रोक्सीमेटली 1500 से ज्यादा बच्चे थे, एंड वैकेंसी थी 300 समथिंग। तो वहां पर हमारा जीडी हुआ था, ग्रुप डिस्कशन। तो ऑलमोस्ट हमारे बिल्कुल ऐसे कॉलेज से बच्चे थे, गार्गी, एसआरसीसी, हिंदू, और एलएसआर, बाकी जितने भी टॉप कैंपस कॉलेजेस हैं। तो हमें जीडी के लिए बैठा दिया, अलग अलग कॉलेज के बच्चे थे, मुझे किसी का नाम नहीं पता था, हम कोड दे रखे थे हमें। और तो रैंडम टॉपिक देते हैं, एक्सएमपी टाइप टाइप ऑफ होता है, तो हमें रैंडम टॉपिक मिलेगा। फॉर एग्जांपल तो मुझे मिला था विकसित भारत एवरेज 47। तो हर बच्चे को उसमें बोलना था कुछ ना कुछ, एंड दैट एडेड अप टू 30 मिनट्स। तो जब तुम ऐसे बोलते हो ना, बिल्कुल एक एम्प्टी हॉल में 10 बच्चे वहां पे बैठे हैं, और साथ में तुम्हारे पास 5 प्रोफेसर बैठे हैं एसआरसीसी के, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस और बूस्ट होता है, तुम्हें खुश मिलता है कि मुझे अपने आप को प्रेजेंट करना, दिस इज माय चांस, दिस इज माय अपॉर्चुनिटी टू शाइन। दो बार सिलेक्शन नहीं हुआ, बट एक्सपीरियंस वाज रियली गुड। मैंने वहां पर, फॉर मी आई परफॉर्म्ड वेल, बट फॉर देम आई माइट नॉट बी राइट फॉर देम। तो वहां पर जब तुम जाओगे तो खुद भी थोड़ा सा नर्वस भी होगा कि बहुत सारे बच्चे कैसे होगा, बट दैट वुड हेल्प यू टू फेस रियलिटी एंड फेस पब्लिक, फेस हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ अमंग सो मेनी पीपल। पहले आई वुड प्रेफर गोइंग फॉर स्किल्स। पहले स्किल्स जो अभी चल रहे, जनरेटिव एआई और एडवांस एक्सेल अलॉन्ग विद द डाटा साइंस एंड डाटा एनालिसिस एंड एसक्यूएल। ये कुछ 5 स्किल्स ऐसी हैं जो हर बच्चे को आनी चाहिए, एंड एटलीस्ट 3 आउट ऑफ देम। जनरेटिव है तो एक ऐसी चीज है भाई, हर कंपनी को तुमने सीवी में लिख भी रहे हो, जनरेटिव की प्रॉम्प्टिंग आती है मुझे, या फिर हाउ टू यूज जनरेटिव इफेक्टिवली इन वर्ड और इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो वो तुम्हें एक मिलता है, एज मिलता है बाकी कंपटीटर से, बाकी कैंडिडेट से, कि अच्छा कैसे, जैसे कुछ बच्चों को वर्ड पे वो बिल्कुल अभी बेसिक खुद ही लिख रहे होते हैं, दे आर नॉट यूजिंग फॉर मैट पेंटर और एनी अदर टूल्स। But if you are mentioning something that is ahead of the time and ahead of what other people are doing, so generative AI is good for you. Apart from that, data science, data analysis, Power BI, and advanced Excel.
एडवांस एक्सेल तुम्हें कॉलेज में भी हेल्प करेगा फॉर प्रोजेक्ट, एंड पर्सनल लेवल पे भी एक्सेल तो सबको आना चाहिए। और अगर हम बात करें इंटर्नशिप की, हाउ टू कैटेगराइज देम, सो बेसिक जो हमें सभी को पता है वो एचआर, कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो मेकिंग और प्रूफ रीडिंग एंड सेल्स, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, और उसके अलावा सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट। तो बच्चे सोशल मीडिया में भी आप यू कैन यूज एआई टू ग्रास्प आइडियाज एंड टू हाउ टू रिप्रेजेंट द कंपनी। और उसके अलावा अगर तुम्हें स्टार्ट ही करना है, किसी इंटर्नशिप तुम्हें नहीं मिल रही है, गो फॉर एन एनजीओ देन। एनजीओ में क्या होता है, तुम्हारे सोशल वर्क देखते हैं कि अच्छे बच्चे ने बहुत वॉलंटियरशिप टास्क कर रखे हैं प्रीवियसली, इसने यहाँ पे इसने यहाँ पर करा था, तो वो एक तुम्हें और वो देता है कि अच्छा मैं सोशल वर्क भी कर रखा है, मैंने ये जेनेटिक भी आता है, मुझे एडवांस एक्सेल भी आता है, मुझे ये भी आता है। तो तुम्हारे सीवी को ऑलराउंडर वो दिख जाएगा कि बच्चा कर लेगा आगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पहले भी कहा था, डिफाइन योर डोमेन। यू नीड टू डिफाइन व्हाट पर्टिकुलर वर्क एंड पर्टिकुलर डोमेन यू वांट टू गो फॉर इट। उसके अलावा मास्टर्स अगर तुम्हें करनी है तो तुम्हें एमबीए करनी है, तो इफ यू वांट टू डू एमबीए इन फाइनेंस, सो गो फॉर फाइनेंस इंटर्नशिप्स फर्स्ट, डेवलप हाउ टू बिल्ड अ स्ट्रैटेजी इन फाइनेंस फर्म्स, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड ओनली देन, जबरदस्ती मत करो कोई चीज। अगर तुम्हें फाइनेंस में इंटरेस्ट है देन गो फॉर शेयर मार्केटिंग के कोर्सेज आते हैं बहुत सारे, कि बीएससी और एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफर करते हैं कोर्सेज, वो सब ट्राई करो। फिर उसके बाद गो फॉर फाइनेंस इंटर्नशिप। कुछ बच्चे सीएफए भी कर रहे होंगे अभी, तो उनके लिए बहुत ये फ्रूटफुल और बेनिफिशियल होगा अगर वो फाइनेंस इंटर्नशिप में करें इंस्टेड ऑफ जस्ट बेसिक दोनों जो बाकी बच्चे भी कर रहे हैं, क्योंकि फाइनेंस इंटर्नशिप उनको ज्यादा एनहांसमेंट देगी, और उनके जो एक्चुअली वो रट रहे हैं सीएफए के एग्जाम्स के लिए, वो उनको प्रैक्टिकल नॉलेज देगी वो इंटर्नशिप। तो या Uh, Everyone, you can also use chat पे लिख सकते हो if you are not comfortable like asking out, कोई issue नहीं। मुझसे किसने पूछा था? आपने पूछा कि दिवांशी है? एनीवन एल्स कुछ भी पूछना होगा तो पर्सनल पे ही पूछना है, तो यू कैन मेल मी। And apart from that, I would generally thanks Arnav and Divyanshu for inviting me in here. क्योंकि मेरे को था कि मुझे किसी बच्चे को बोलना है, ऐसे मैं जूनियर जो मेरे बीबी में जूनियर्स हैं, तो मुझसे पूछते रहते हैं कि कैसे करें दीदी, क्या करें क्या करें। तो ये कॉलेज ठीक है, हो जाता है, कुछ बच्चे इसको वो लेते हैं वेस्ट ऑफ टाइम, बट इफ यू राइट इट्स द ओनली टाइम व्हेन यू कैन एक्चुअली डेवलप योरसेल्फ फॉर एक्चुअल रियल वर्ल्ड। और बहुत ज्यादा हासिल मत करो कि बहुत कुछ मुझे डिस्काउंट इंटर्नशिप नहीं मिली, हमें स्किल्स नहीं आती, हम तो किसी लायक ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ ना कुछ सभी कर लेते हैं। तो या एनी क्वेश्चंस एनीवन? Uh, yeah, so like one question you mentioned about projects, right? Like projects like show good on CV. So like what were some like sites where you like tell us that how to do these projects? Like which एक तो particular गोल्डमैन project सैक्स, would help in CV? गोल्डमैन सैक्स एक ऑफर करता है, एचपी ऑफर करता है, उसके अलावा एक डेल भी ऑफर करता है। दे आर ऑल ऑफ डेटा साइंस एंड डेटा एनालिसिस एंड पावर बीआई। और तुम्हें गाइड भी करेंगे, ठीक है, तुम्हें बस टेस्ट ही देना है, बट दे विल शो यू द एक्चुअल वीडियोस और कि ऐसे करना होगा ऐसे करना होगा। और बाकी हैंड ऑन प्रोजेक्ट्स गूगल भी ऑफर करते हैं कुछ, तो तुम्हें वेबसाइट पे मिल जाएंगे गूगल हैंड एड ऑन कोर्सेज वगैरह के नाम से। एंड आई विल प्रोवाइड यू अ लिस्ट, यू कैन मेल मी, आई कैन गिव यू अ लिस्ट ऑफ ऑल द प्रोजेक्ट्स दैट आई डिड और आई प्रेफर यू शुड डू। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल आल्सो ऐड वन थिंग, एड ऑन कोर्सेज। हमारे कॉलेज वाले बहुत एड ऑन कोर्सेज ऑफर करते हैं, जैसे अभी उन्होंने रिसेंटली एक्सेल पे निकाला था। आई मिस्ड इट बिकॉज आई क्रॉस द डेडलाइन।
तो कॉलेज ऑफर करता है, उसे कर लिया करो, बिकॉज दे आर अनपेड एंड द रिसोर्स पर्सन आर कमिंग आर एक्चुअली गुड। वो एक्चुअल में वो कर रहे होते हैं, वो एक्चुअली में इंडस्ट्री लेवल एम्प्लॉयज होते हैं। अभी हमारे स्कूल कॉलेज में वर्कशॉप भी हुई थी जनवरी में। वो हुई थी हमारी कैनवा पे और ग्राफिक डिजाइनिंग पे। सो एक एक्चुअल में नेटफ्लिक्स की एम्प्लॉय आई थी 2 दिन के लिए, उन्होंने हमें सिखाया कि एक्चुअल में फिग्मा पे या फिर कैनवा पे डिजाइन कैसे बनाते हैं, बोथ फ्री ऑफ कॉस्ट एंड पेड। तो जो कॉलेज वाले ऑफर करते हैं उनको बस वैसे ही मत लिया करो, पागल से हैं तो कुछ भी ले आते हैं, नहीं। अभी कॉमर्स डिपार्टमेंट ने भी ऑफर करा था डेटा साइंस पे और एक फॉरेंसिक साइंस पे व्हेन आई वाज इन फर्स्ट सेमेस्टर। सो आई डोंट कोर्सेज कॉलेज वाले ऑफर करते हैं, वो कर लिया करो, दे प्रोवाइड सर्टिफिकेट एज वेल एज दे ऐड, मतलब तो तुम्हें ना वो कर देंगे कि हाँ ये भी ऐसी कुछ चीजें, तो वो एटलीस्ट इंट्रोड्यूस कर देंगे उस चीज से। तो यू कैन गो फॉर दैट। अभी गूगल पे भी लाए थे कॉलेज वाले, गूगल एडम कोर्स पे भी था, एक डिजिटल मार्केटिंग पे भी था जो रिसेंटली लैब में हो रहा था, जीजाबाई कंप्यूटर लैब में। दैट वाज पेड बट इट वाज नॉट दैट पुअर, मतलब बेसिक लेवल था उसमें बहुत। बट यू कैन गो फॉर इट अगर तुम्हें स्टार्टिंग है डिजिटल मार्केटिंग की क्या चीज है, बेसिक मुझे नहीं पता है, एंड यू कांट अफोर्ड हैवी 60-70 थाउजेंड के कोर्सेज। उसके बजाय जो कॉलेज वाले ऑफर करते हैं उनको ट्राई करा करो करने की। दे विल अलाइन विद योर academics along with your timetable. The classes are usually happening in weekends or late at night or even recorded lectures. तो लिया करो। ये मतलब खुद भी हो रखा था फर्स्ट सेमेस्टर में, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में थी और मेरे को सीवी वगैरह रेडी नहीं था। तो कंपनी अप्रोच्ड मी, आई वोंट टेक द नेम, एंड आई एक्चुअली डिड दैट इंटर्नशिप। दे आस्क्ड मी, दे विल पे मी फॉर इट एंड आई गॉट एक्साइटेड, मेरी पहली इंटर्नशिप भी पेड होगी। तो आई बहुत अच्छा से काम देते थे कि ये मैसेज आपको फॉरवर्ड करना है, ये सब करना है। बट दे एक्चुअली दैट्स कॉल्ड विंडो ड्रेसिंग। दे विल शो यू कि हाँ तुम्हें ऐसे मार्केटिंग करनी होगी, हम तुम्हें लिंक्डइन भी सिखाएंगे, तुम्हें ये भी सिखाएंगे, एफिलिएट मार्केटिंग भी सिखाएंगे। बट दे एक्चुअली जस्ट यूज यू जस्ट टू प्रमोट देमसेल्फ इन योर कॉलेज। अगर तुम्हें वो जेन्युइन पता है कि है या नहीं है, फर्स्ट यू शुड नो, फर्स्ट गो सर्च द लिंक्डइन ऑफ दैट कंपनी एंड फाइंड द म्यूचुअल कनेक्शंस कि वहाँ पर कौन कौन है जो तुम ऑलरेडी कर चुका है, जिसको तुम जानते हो। कनेक्ट टू देम, आस्क अबाउट द कंपनी, टॉक अबाउट द कंपनी, हाउ आर दे, व्हाट दे डू एंड whether they're genuine or not. फर्स्ट वेरीफाई दैट कंपनी। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू आर स्टिल फीलिंग कि मुझे कर लेनी चाहिए, करके देख लो, छोड़ दो मिड में। कुछ होते हैं कि हम तो आपको ऐसे करेंगे, कुछ नहीं कर सकते वो आपको भी, दे कांट रिपोर्ट यू, दे विल थ्रेटन यू कि अगर तुम बीच में छोड़ोगे ना तो हम तुम ऐसे करेंगे, तो हम ऐसे करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। यू आर देयर इन रिमोट इंटर्नशिप्स एंड ऑनलाइन इंटर्नशिप्स। तो भी होता है कि फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स हैं, आपको बस मैसेजेस फॉरवर्ड कर देंगे एंड द नंबर ऑफ मैसेजेस that we will get reply accordingly, we will pay you and they won't pay you. They will ghost you after your internship is complete. You will keep mailing them, you will keep messaging them, but they won't answer. So करके देख लो अगर एक्सपीरियंस लेना है इसका भी, इफ दे आर जेन्युइन कि वो तुम्हें एक्चुअली पे करेंगे एंड इफ दे आर पेइंग यू, तुमसे फिर काम भी उस लेवल का लेंगे। तो स्टार्टिंग में तुम्हें पेड इंटर्नशिप मिल जाए 10,000 पर मंथ की, एंड यू आर सीरियसली अनस्किल्ड एंड अंडर ग्रेजुएट और अंडर क्वालिफाइड फॉर दैट, देन it's an alarming situation. You should first verify the company as well as the validity of the company. So is everything clear to everyone? Because there are no questions.
तो जैसा आपने बोला कि इंटर्नशिप्स हमारे आफ्टर ग्रेजुएशन के सीवी में हेल्प करते हैं, तो लाइक इफ आई हैव अ प्लान कि मुझे आफ्टर ग्रेजुएशन क्या करना है, बट अभी मुझे करंटली जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट है उस चीज़ से। सो मुझे उसके इंटर्नशिप टाइम में जाना चाहिए या अभी उस, क्योंकि मेरा प्लान डन है कि मुझे इस चीज़ में जाना है, पर अभी करंटली मुझे किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है। हम्म तो देन कुछ एड्रेस योर in इंटरेस्ट, mind है। उसको दबाओ मत। एड्रेस दैट इंटरेस्ट, अगर तुम्हें है कि अगर तुम बता सकते हो अगर तुम इसके कंफर्टेबल, तुम्हें किस चीज में इंटरेस्ट है अभी। मुझे लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग में इंटरेस्ट है और कोर्स कर रहा हूँ मैं उसका, लाइक इट इज गोइंग ऑन। हम्म, तो तो करो, क्यों ना करो, इट्स गुड फॉर यू। हम्म हर चीज केवल मास्टर स्केल नहीं होती है, वो तुम्हारे कई बार तुम्हें करनी है। हम्म अगर तुम चीज को, अगर तुम्हें एनहांस करना है, तुम एक्चुअली में सीखने की एक्चुअली कैसे काम होता है, तो तुम इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखते हो या फिर एड्स देखते हो टीवी, तो वो कैसे कैसे बनते हैं, कौन बनाता है, देन उस चीज को, उस क्यूरियोसिटी को ना मत मारो। जस्ट तुम्हें मास्टर्स किसी और चीज में करनी है, तुम्हारा अभी ग्रेजुएशन किसी और चीज में चल रहा है, उसको जबरदस्ती। अभी आया था ना पीछे की गूगल वाले ने, गूगल कंपनी ने किसी 19 ईयर्स के बच्चे को हायर किया जस्ट बिकॉज उन्होंने बस उसने एक एड बहुत अच्छा बनाया था, एंड वो कॉमर्स का बच्चा था, वो इंजीनियर भी नहीं था। तो ऐसा जरूरी है कि केवल एकेडमिक्स से तुम कुछ बड़े वो बनोगे, बट इफ यू आर इंटरेस्टेड इन समथिंग, डोंट डोंट सप्रेस इट, उसको उभरने दो। एंड समटाइम्स दैट स्टिल ओनली गिव्स यू द राइट वे। अगर तुम्हें, जब भी अभी तुम बोल रहे हो कि तुम्हें ग्राफिक डिजाइनिंग जाना है, वीडियो एडिटिंग में जाना है, तो नो वन नोस कि यू माइट बी द ग्रेटेस्ट ग्राफिक डिजाइनर ऑफ इंडिया। And also, like, what was your experience during that first internship? Like, what in it helped you to like do further internships? ओके, सो पहली पहली इंटर्नशिप मैंने फरवरी 2024 में करी थी। वो भी मुझे रेफरल दिया था मेरे सीआर ने, क्लास रिप्रेजेंटेटिव ने, कि यू कैन ट्राई, यू कैन गो फॉर दिस एज ए फर्स्ट इंटर्नशिप। तो अगर अपनी सीवी की बात करूँ, बहुत गंदा सीवी था मेरा, पहला रेज्यूमे बहुत पुअर था। उसमें मैंने अलग अलग विभिन्न प्रकार के कलर्स यूज करे हुए थे जो मुझे नहीं करने चाहिए थे। बहुत लेट रियलाइज हुआ कि ऐसे ही नहीं बनता रेज्यूमे। तो और जो मैंने चीजें ऐड करी थी, कुछ स्कूल के प्राइजेस थे कि मैंने इंटरनेशनल पे ये जीता हुआ है, ये जीता हुआ है, ये करा हुआ है। और कुछ कॉलेज के थे कि एक एडम्स में ये करा, एडम कोर्स मैंने अभी तक ये करा, कॉलेज करा हुआ है, ये जो अलाइन भी नहीं करे थे, हमें मैंने अप्लाई करा था, अप्लाइड फॉर अ कंटेंट राइटिंग इंटर्नशिप एट Hajjana Street School. So it was an NGO, it was non-profit organization. So I used to write articles every day, 700 to 800 words a day, and they used to prove it. And then one of my articles by the end of my internship was posted on the actual website and the LinkedIn of Hajjana Street School. And one of my articles was even used to pitch a donor. So वो अच्छी थी इंटर्नशिप, इट वाज गुड, द एक्सपीरियंस वाज गुड। आई एक्चुअली विजिटेड देयर कैंप एंड मेट द स्टूडेंट्स एंड मेट द चिल्ड्रन। तो पहली इंटर्नशिप बहुत बेसिक सी होती है, वो तुम बस एक वो पे आती है यूज टू कि अच्छा ऐसे काम होता है। एनजीओ में इंटर्नशिप करना इज गुड, एक तुम्हें वो फेमिलियरिटी मिलती है एंड यू फील गुड कि हाँ ऐसे भी कर सकते हैं हम चीजें। लेकिन केवल एनजीओ में मत करना, गो फॉर कंपनी स्टार्टअप्स, बिग फोर में अगर यू कैन ट्राई, गो फॉर गवर्नमेंट इंटर्नशिप्स, एनएचआरसी, नीति आयोग, ईएएम। उसके अलावा भी एक और आई थी पीछे, फॉरवर्ड द नेम ऑफ द मिनिस्ट्री, बाकी बहुत सारी आती रहती हैं। एक इन्फ्लुएंसर है लिंक्डइन पे, पीयूष खन्ना, आई थिंक पीयूष कुमार, पीयूष खन्ना, ही पोस्ट लॉट ऑफ गवर्नमेंट इंटर्नशिप्स। तो उसको फॉलो कर लो तुम गवर्नमेंट इंटर्नशिप्स में इंटरेस्टेड हो। और फॉर कॉर्पोरेट्स यू कैन फॉलो Zeal career counselor as well as this is Alaska. So follow the right people both on Instagram and in real life. So
So I would sum up the session कि you can reach me anytime and through AskUp as well. Apart from that, you will learn from your own mistakes. केवल मेरी बातें सुनने से या फिर किसी और mentor को सुनने से you won't be able to do the right things. First, you need to know what you are interested in and what you need to do and for to work on that skill. उसके अलावा रिटर्न ट्रायल से ही चीजें ठीक होंगी. केवल मैं मुझे फॉलो कर रहे हो किसी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को फॉलो कर रहे हो, दैट्स नॉट राइट. Find your own path and find the right opportunity that you feel right for yourself. Apart from that, balance your academics, your society work, and your personal life as well. Don't just ruin your personal life, your friends, or your family relations for internship and academics and master's की तैयारी. Apart from that, I think you are smart enough to judge what's right and what's wrong for you. So yeah, that's all from myself. Thanks a lot, Anya. And to be honest, I would like to say Anya is a very awesome person. She's quite helpful and she's always there whenever you need her help. And with that, I like to say that this is the end of our session. Please, everyone, share your reviews, anything, feedback. How was the session? May I lead the meeting? Anything else? Don't call me. You can call me Anya. No problem. Good Enjoy evening. the Thank birthday you. cake. You too. Enjoy your night. Bye. Bye. Good night. Bhavna and Anshika, you can leave the meet.